Hi everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In today's video, we'll try and understand how to calculate your fertile days. Remember, for a lot of couple trying naturally, this is something very important. In order to do a calculation using your fertile days, I've just drawn a calendar out here, but it's important that you need to have regular cycles in order to follow this nicely. A standard regular cycle is going to be around 28 to 30 days for women in India. Husband parameters need to be absolutely normal and female parameters should be absolutely normal prior to trying naturally with your fertile days. अब हम ये जानेंगे कि fertile day का calculation कैसे करना चाहिए. Remember, Day 1 is the day when your period start. मतलब जिस दिन पे menses चालू हुए उसे day 1 कहते हैं. मान के चलिए your periods are going to be for approximately 4 days. So number 1, number 2, number 3 and number 4. These days are gone. जिन दिन पे period आते उन दिन पे आप try नहीं कर पाते. It's pretty obvious. इसके बाद में normally लोगों ने ये सुना ऐसा रहता है कि ladies को normally जो ovulation रहता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 12th और 14th डे के बीच में. सो लेट मी जस्ट मार्क दिस एज द पीरियड फॉर ओव्यूलेशन. ऑलराइट, और ओव्यूलेशन होने के बाद में 12 या 14 दिन के बाद में अप्रोक्सीमेटली आपका नेक्स्ट पीरियड आता है. तो मान के चलिए आपका 28 डे का साइकिल है तो आपको यहां पे पीरियड आ जाएगा. 29 डे का साइकिल है तो यहां पे, 30 डे का साइकिल है तो यहां पे. अब नॉर्मली काफी बार when people follow these ovulation kits, जो लोग ये ovulation kits follow करते हैं वो लोग एकदम 24 घंटा बस हमें तभी ही ट्राई करना है. ऐसा नहीं होता है. In order to try, just keep this in your mind. It has to be at least 3 to 4 days before. मतलब your efforts should start from approximately this time and it should continue approximately 3 to 5 days later. So that means अगर 14th अंदाजन मैं मानता हूं then your efforts should continue approximately till these days. अब day 9 से लेके day 20 अगर आपका fertile period है तो उसमें you are supposed to have intercourse every alternate day at least. Okay, every alternate day at least. You can have it daily also, but every alternate day or daily intercourse is something which is highly advisable in this situation. Second, you must remember that sperms एक बार वजाइना में रहते हैं तो sperm can be alive for approximately 48 to 72 hours. Okay, the sperms will be alive and pregnancy करने के लिए you need a healthy sperm concentration inside the uterus. Remember this thing without fail. You need a healthy sperm concentration inside the uterus. इस पूरे चीज में मैं आपको और एक एकदम बेसिक चीज बताता हूं. ये एकदम कॉमन चीज है. ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जिसमें आप फर्टाइल विंडो में ट्राई करते हो तो प्रेगनेंसी ज्यादा होती है. रिमेंबर, द पोजीशन शुड बी द पोजीशन वेयर योर पेनिट्रेशन इज द मैक्सिमम. ओके, सो बेस्ट पेनिट्रेशन वाइल इंटरकोर्स जो पोजीशन में आप रख सकते हो दैट इज ऑब्वियसली द बेस्ट पोजीशन टू हैव इंटरकोर्स. एंड ड्यूरिंग दिस फर्टाइल विंडो प्लीज ऑल्सो रिमेंबर, जब कभी भी आप इंटरकोर्स करते हो तो ये ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% ऑफ सीमेन विल लीक आउट. ये एकदम नॉर्मल है. ये लोगों के माइंड में डाउट रहता है when we had intercourse काफी सारा सीमेन बाहर आ गया. This is absolutely normal, so please don't worry about that. Of course, ये सारे चीजों करने के बाद में भगवान के लिए ये मत सोचिए कि आपने 1 महीने में ट्राई किया वो ही महीने में पूरा इंडिया प्रेग्नेंट हो गया. ऐसा नहीं होता है. Couples should remember that whenever somebody is trying for pregnancy ड्यूरिंग द फर्टाइल डेज, मतलब डे 9 से लेके ये जो डे 20 का जो ये विंडो है इसमें अगर आप ट्राई करते हो तो ऑन एन एवरेज यू विल हैव अ सक्सेस रेट ऑफ क्लोज टू 5 to 8%. ये आपको ध्यान रखना है. ये 5 to 8% आता है
अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे या डेली इंटरकोर्स करते हो तो 5 to 8% सिर्फ ये विंडो में 13-14th डे पे इंटरकोर्स करने से, हमारे पास टाइम नहीं था, हमको टाइम नहीं मिला, एक ही बार इंटरकोर्स किया, सिर्फ इतना कम इंटरकोर्स करने से आपका सक्सेस रेट विल गो डाउन टू लेस देन 2%. एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्टली मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, काफी ऐसे कपल्स ऐसे रहते हैं जिनके पीरियड्स इररेगुलर रहते हैं, इररेगुलर साइकिल्स में, स्पेशली अगर ये 28-30 डेज से ज्यादा साइकिल्स रहती है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बार आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, वो कैलकुलेट करके फर्टाइल डेज आपको बताएंगे एंड देन यू ट्राई फॉर अ कंसेप्शन. एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स. मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच.